Hello friends. So today we will start with the solid state chapter number 1. Okay. So already we have seen about the matters, state of matters. We are knowing that first of all we have seen three types of matter and that are like solid, gas and liquid. Okay. Recently research says that more two type of matters are there and that one is a plasma and Bose-Einstein condensate. Okay, so already we have learned it. After that we have seen that what is the basic properties of solid, how it's going to differ from liquid and gas. Okay, after that we have seen there are two type of solid. I can say one is crystalline and the another one is amorphous. So till that we have seen. Okay, so in today's lecture we will see types of solid according to the intermolecular forces. Types of solid according to the intermolecular forces. Okay, if suppose consider these two things. Okay, this one is a glass. I can say what I can say here, it's a SiO2. This one is made up of silica. Okay, or I can say glass bottle is there. Okay, and here in this I can say this one is a metal. Okay, so why both has a different property? Why this one is like glassy and have a different property, and what is the property of metal? Okay, so why it will differ? So basically it will depend on the constituent particles and like attraction force between them. Here I can say here is this one is a metallic in nature. Okay, I can say like iron and some other metal, mixture of some metals are there. So basically we are going to classify our solids in a four portion. As you can see, according to the intermolecular attraction force, we are going to classify our solids in a four portion. Okay, and the first one is, I can say, it's like molecular solid. The another second one is, we can say, ionic compound. The third one is metallic compound, and the last one is covalent network solid. These four types of solids are there. Okay, already we have seen about molecular solid, so I will not take it in a deep. Now come to the second one, and that one is a ionic portion or ionic solid. Okay, so whenever I am just talking about this ionic solid, so we will go into the deep, or I can say we will see it in a brief. Okay, so first of all let me introduce ionic solid. Okay, so whenever I will say ionic solid, constituent particles will be ions. Okay sir, we have not seen ionic solid. It's not like that. Just go to your kitchen and just pick up that NaCl salt. That one is ionic in nature. Okay, वो ionic compound है NaCl, जो नमक बोलते हैं. Okay, so उसके अंदर basically constituent particles क्या होते हैं आप देख सकते हैं. यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किए हुए वो है ions. Okay, अब ये जो पिक्चर है वो दिखाती है कि constituent particles of that solid are ions or is ion. उसके जो constituent particles है वो ions होते हैं. तो नमक जो है उसमें crystals होते हैं. मीन्स उनकी जो अरेंजमेंट होती है सोडियम और क्लोरीन की, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सही तरीके से प्रॉपर है. ऐसा क्यों होता है? ओके, सो विच काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन दैट मोलेक्यूल? नाउ व्हाट आई एम सेइंग, constituent particles are ions. One NaCl molecule indicates one Na plus ion and one Cl minus ion. Okay, like lots of NaCl ions will come together, they will arrange in a proper manner as you can see. Okay, and they will form solid. Okay, आप लोग बोलोगे सर इसमें आयंस ऐसे एक्जेक्टली अच्छी तरह से अटैच कैसे होते हैं, प्रॉपर तरीके से ये सभी आयंस अरेंज होके क्रिस्टल कैसे बनाते हैं? और दूसरी चीज लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये जो पूरी अरेंजमेंट है वो ऐसी बिल्कुल एज सच कैसी रहेगी? यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया हुआ है डायग्राम में वो Na प्लस और Cl माइनस के पॉइंट्स है. ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं. यहाँ पे वन Na प्लस
is surrounded by 6 Cl minus, and 1 Cl minus is surrounded by 6 Na plus. Okay, and that kind of I can say arrangement is present into the NaCl. We will say that one is a crystal of NaCl. Okay, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं NaCl कैसा है, उनकी जो प्रॉपर्टी है. अब मैं बात करता हूँ कि अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो है आयोनिक बॉन्ड, दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ आयोनिक बॉन्ड, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि नमक जो है वो आराम से पानी में पिघल जाएगा, हम कहते हैं वो डिसॉल्व हो जाएगा. लेकिन आप एक काम करो, एक कटोरी लो और एक बाउल लो और उसमें नमक डाल के उसको हीट करने की ट्राई करो. ओके, एट अ हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, इट्स गोइंग टू melt because that ionic bond is a very strong in nature. Second thing, if this ionic compound is in a solid form, it's not going to conduct electricity. Right now we are going to see the properties. Okay, physical properties. We can say mostly ionic compounds are crystalline in nature. Okay, the second thing is that in ionic compounds, like a strong ionic bond is there. That's why melting point is a very high. The third thing, they are brittle in nature. आप नमक को लेना, उसको तोड़ने की ट्राई करना, it's a brittle in nature. Okay, and the fourth one is that they are insulator of electricity in a solid form. Once again, I am repeating it. They are insulator of electricity in a solid form. But whenever we are going to prepare solution or whenever we are going to melt that salt, so ions will be free and they can conduct electricity. So hope you can see the properties of ionic compounds. NaCl जो है वो solid form में electricity conduct नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर आपने उसको पिघाल के रखा है और उसका solution बनाया है तो NaCl आराम से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. Okay, so that one was all about ionic compound. Now the third type of solid compounds is metal or metallic compound. What do you mean by exactly metal? Okay, so now let me explain you. Metal, what exactly in a metal, or I can say just take aluminium rod or aluminium piece. Okay, so in that what happens, there is a one kernel. Kernel means inner orbitals and center of that atom, nucleus of that atom. Okay, in metal, or I can say metallic compounds are sea of electrons. जैसे आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है कि मेटल्स के जो इनर ऑर्बिटल और जो न्यूक्लियस है उनको हम लोग कर्नेल बोलते हैं, जो प्लस है, और वो जो है अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है नाउ दे आर लाइक नॉट लाइक आई कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड विद द पर्टिकुलर एटम. वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के साथ फिक्स जुड़े हुए नहीं रहते हैं. दे कैन माइग्रेट थ्रू एंटायर सॉलिड, और आई कैन से वो पूरे ही मेटल में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं. आप देख सकते हो, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. एंड दैट काइंड ऑफ बॉन्ड इज नोन एज अ मेटालिक बॉन्ड. दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बाइंड दैट कर्नेल, मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर शेल विल हेल्ड टू nucleus, okay, like tightly, and that's why that bond is metallic bond. हम ये बोल सकते हैं कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन का सी है, ओके, समंदर है इलेक्ट्रॉन का, और बीच बीच में जैसे नाव होती है उसी तरह यहाँ पे हम लोग कर्नेल ले सकते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, उस कर्नेल को एक साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ के रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो और भी कि मेटालिक बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है. ओके, मेटालिक बॉन्ड कैसा है, बहुत ही स्ट्रांग है. तो आपको पता ही है, आयन ले लो, कॉपर ले लो. ओके, इट वरीज. ओके, मेटालिक बॉन्ड वरीज according to the metal. I can say for the sodium it's very different. After that after sodium I can say copper, iron, they all are like very strong and hard metals. Melting points very high. Okay, they are good conductor of electricity. Okay, here you can see the properties of metal. Already we have seen it's a pool of electron.
Okay, so once again let me revise. Metallic solid constituent particles are metal atoms. मेटल के जो एटम होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है. कौन से टाइप का बॉन्ड लगता है वहां पे? मेटालिक बॉन्ड है. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी एटम के लिए पर्टिकुलर नहीं है, वो पूरे समुद्र की तरह घूमते रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स कर्नल को क्या करके रखते हैं? एक साथ जोड़ के रखते हैं. एंड द नेक्स्ट वन अगर मैं आपको बात करूं तो उसके बाद जो है वो है आई कैन से high melting point, good conductor of electricity, good conductor of heat. Okay, so all the things were about metallic compounds. Now the fourth thing is that covalent compound. Okay, or I can say covalent network solid. जैसे हम बहुत ही अच्छा है, ये क्या घूम रहा है? हाँ, ये रहा डायमंड. देखो ये जो स्ट्रक्चर वो डायमंड का पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, तो आप देख सकते हो बहुत ही हार्ड होते हैं जो नेटवर्क वाले होते हैं. देखो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है ना वो आयोनिक बॉन्ड है, और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है. ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कई सारे ऐसे एक्सेप्शन है, जैसे नेटवर्क सॉलिड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे हाई होते हैं. अगर मैं आपको बात करूँ डायमंड की, तो डायमंड इज अ गुड एग्जाम्पल. डायमंड एंड ग्रेफाइट्स दे आर गुड एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड. एज यू कैन सी इन अ डायमंड, दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स. ओके, जो वो है कार्बन एटम जो है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है. हर बार सभी एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के एक जायंट क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि हर बार क्या होता है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और वो बहुत ही जायंट क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. दिस वन इज नॉट limited to this amount only. Okay, this one is like I can say expandable in a 3D. Okay, हाँ, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी क्या होती है? वेरी करती है. कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है. कई बार क्या होता है पता है? आप कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने की ट्राई करते हो, जैसे कई बार प्लास्टिक को आप जलाने की ट्राई करते हो तो प्लास्टिक पिघलने से पहले क्या होता है? डिग्रेड हो जाता है. डिग्रेड हो जाते हैं मतलब वो आई कैन से उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट उतने हाई होते हैं. इट्स आप देख सकते हो डायमंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है. दूसरा एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. उसके सिवा बाकी सभी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या है भाई? इंसुलेटर है. दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे हैव नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, सो अगर हम लोग बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायमंड है, वहां पे ग्रेफाइट है. डायमंड थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, सॉरी ग्रेफाइट थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, डायमंड बहुत ही हार्ड होता है. और ये सभी कोवलेंट सॉलिड है. ओके, क्या रहता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? एटम्स. दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. जायंट मॉलिक्यूल्स आर देयर. ओके, कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड द नेक्स्ट वन इज दैट यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहते हैं. ओके, और द वेराइटी और around 90% of substance are covalent substance which we are using. Okay, right nowadays. कैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई बॉटल है, सपोज ये वाली बॉटल है तो ये प्लास्टिक की बनी हुई है. आई कैन से दिस वन इज अ कोवलेंट नेटवर्क काइंड ऑफ और पॉलीमर काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो ये जो आएगा वो कोवलेंट सॉलिड के अंदर आएगा. अगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो है SiO2 है, क्वार्ट्स है, ये भी जो है वो नेटवर्क सॉलिड के अंदर ही आएगा. दोनों कोवलेंट बॉन्ड से ही एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो फिर से प्रॉपर्टी क्यों चेंज हो जाती है? इट्स गोइंग टू डिफर अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ओके, उसके बाद यहाँ पे तो हमने देख ही रखा है डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं. ग्रेफाइट में लेयर वाली स्ट्रक्चर होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. वी हैव ऑलरेडी सीन इट 11th स्टैंडर्ड. एंड डायमंड में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरह से होता है. ओके, उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो एक और जो है वो कौन सा है? हमारे पास और बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इवन यू कैन क्लासिफाई. ओके, सॉलिड्स अराउंड यू, आपके आसपास जितने भी सॉलिड्स हैं आप ट्राई करो उसको क्लासिफाई करने की इन 4 पोर्शंस. वन इज मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड वन इज आयोनिक सॉलिड, थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ वन इज कोवलेंट सॉलिड. ओके, तो इन 4 टाइप्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, हमने सभी की प्रॉपर्टीज देखी. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी और आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज सकते हो. ओके, दूसरी बात, अब जो हम आगे बढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही समझने वाले है. तो सब पुराना वाला और इंट्रोडक्शन पोर्शन था.
कल से जो है नेक्स्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल, उसमें यूनिट सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, ओके, रिपीटेशन क्या होता है यूनिट सेल का, दैट ऑल द थिंग्स विल, बट स्लोली विल गो अहेड, डोंट वरी. ओके, थैंक यू वेरी मच.